afternoon to everyone. I am Gaurav Gupta. Today in this session I am going to solve each and every question of the exercise 2.2 class 12 chapter 2 exercise 2.2. The name of the chapter is inverse trigonometric function. This is our lecture number 4. We already solved the exercise 2.1 and discussed all the basic concept that we have need in this exercise. We already discussed. If you still not watched my previous video, so please go to my playlist and watch all them. Now this video is going to be more and more interesting. Why it is going to be interesting? Because in this exercise I am going to solve each and every question together with take each property along also write each trigonometry identity. If you not learn previous trigonometric identity that you already discussed and read in the class 11, I will take one by one according to the question. So don't worry. So this lecture is going to be more and more interesting. So look at the board. Property number 1 we already discussed in lecture 1 as well as lecture 3, because this property totally depends on the exercise 2.1. What's the property? Sine inverse sine x. It gives us x whenever x lies between minus pi by 2 to pi by 2, and minus pi by 2 and pi by 2 is also included. So that's why I have to use square bracket. Same cos inverse cos x, it gives us x and x belongs to 0 to pi. Same in this also we are using close bracket, 0 and pi is also included. Third property is what? Property number 1, parts is different. This is part 1, part 2, part 3. Tangent inverse tangent x, it gives us x whenever x lies minus pi by 2 pi by 2, but in this the bracket is open bracket, it means minus pi by 2 and pi by 2 is not included. Cot inverse cot x, it gives us x whenever x lies between 0 to pi. Same secant inverse secant x, it gives us x whenever x lies between 0 to pi, but x never be equal to pi by 2, because at pi by 2 it becomes not defined. Next one is cosecant inverse cosecant x, it gives us x whenever x lies between minus pi by 2 to pi by 2, but except x not equal to be 0, because at x is equal to 0 it also becomes not defined. So this is the property 1. So please put out your notebook and use a separate page for writing each property as well as each identity. Then do solve the question. Look at the question number 1, because the question number 1 is totally depends on the property 1. We already discussed. Now solve this. Cos inverse cos 2 pi by 3, and you know pi is what? 180 degree. So please solve this. 2 into pi, pi means 180 divided by 3. So 3 gives 60, 60 into 2 120 degree. It means we have a x in this angle, we have a x which is equal to 120 degree. Now you have to look at the property of cos inverse cos x. Cos inverse cos x, it gives x whenever x lies between 0 to pi, pi means 180, 0 to 180, and you know 120 lies between 0 to 180. So our answer is correct. So answer is what? 120. And how you attempt in the board exam? Cos inverse, you can write the answer is 2 pi by 3, because 2 pi by 3 belongs to what? 0 to pi. So answer is what? 2 pi by 3. So our answer is 2 pi by 3. This is our answer. It's very, very simple. Now look at the second part. Sine inverse sine pi by 3. Now what is pi by 3? Pi by 3 means 60 degree, and you know
What's the principal values of sine inverse? Sine inverse is what? Minus 90 to 90, and you know 60 lies between minus 90 to 90. So this gives us answer is pi by 3. Our answer is pi by 3. Why it is? Because pi by 3 lies between minus pi by 2 to pi by 2. This is our answer. So answer is what? Pi by 3. So please make a note. Now please look at the board. Sine inverse sine 3 pi by 5. So please first to solve 3 pi by 5. What's the value in degree? 3 into pi means 180 divided by 5. It means 180 into 3, 540 divided by 5. So 5 1 is 5, 0, 8. It means we get 108 degree, 108. And you know 108 is not lies the principal values of sine inverse function. Look at this. Sine inverse sine x gives us x. Whenever x lies minus 90 to 90, but 108 exceeds the range, so this never gives the 3 by 5 answer. So what we have to do? We have to make it in the form of its range. अब रेंज में कैसे बनाया जाए? Please make a note. We have to know sine is positive, and you know sine is positive in which quadrant? Second quadrant. So आपको करना क्या है? It's very easy. Sine inverse sine. आपको एंगल को चेंज करके लिखना है. हाउ वी विल चेंज? सपोज मेरे पास एंगल 60 डिग्री है, तो मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकता हूं 90 माइनस 30. इट गिव्स आंसर 60. सो आंसर इज ऑलरेडी 60, बट आई चेंज द फॉर्म. सेम फॉर्म आपको भी यहां चेंज करनी है कि साइन साइन ही रहे, लेकिन उसका जो एंगल है उसको पार्टीशन या स्प्लिटिंग करके आपको लिखना है. तो कैसे लिखना है? देखिए, साइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 180 माइनस करके. इसका मतलब जब आपको साइन को साइन ही रखना है तो दो ही चॉइस बनती है, या तो 180 या 360, पाई या 2 पाई. बट 2 पाई द क्वाड्रेंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, और पाई माइनस करते हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? सेकंड. और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? पाई माइनस करके. सो इट्स वेरी सिंपल, पाई माइनस. अब आपको सिंपल पता है कि अब पाई में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें सो दैट वी गेट 3 पाई बाय 5. इफ आई सब्ट्रैक्ट 2 पाई बाय 5, अब इसको सोल्व करके देखिए. यदि मैं इसको अलग से सोल्व करता हूं, पाई माइनस 2 पाई बाय 5, एलसीएम इज व्हाट? 5. 5 पाई माइनस 2 पाई, it gives 3 pi by 5. It means 3 pi by 5 can be written as pi minus 2 pi by 5. Now अब अप्लाई करना है चेंजिंग रूल. आपको पता है पाई मीन्स 180, और 180 पे क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता. इट मीन्स साइन रिमेन्स साइन. सो इफ यू सॉल्व दिस, साइन इनवर्स साइन रिमेन्स sine and angle is as it is 2 pi by 5. I hope आपको ये चीज समझ आई होगी. मैं इसको रब कर देता हूं, आप दोबारा समझिए चीज को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि करना क्या है आपको. 3 pi by 5 जो रेंज से बाहर आ गया 108 इज आउट ऑफ रेंज. सो आपको उस रेंज में लाना है. रेंज में लाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है? जैसे मेरे पास 50 रुपीज है या 70 रुपीज है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 100 माइनस 30, क्योंकि 70 मतलब क्या है? 100 माइनस 30 70 ही है. लेकिन मैंने इसको बोलने का वे क्या कर दिया? चेंज. इसी टाइप से मैं इसको लिखने का वे क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ. तो मैं 3 पाई बाय 5 ही रहेगा, इट मीन 108 ही रहेगा, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ गलत क्या
180 माइनस 72। अब 180 में से 72 माइनस करूंगा, मुझे मिलेगा कितना? 180 मिलेगा। तो मैं लिख कैसे रहा हूं कि मैं यूज करूंगा पाई का। पाई क्यों? क्योंकि पाई पे क्वाड्रेंट जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज नहीं होते, तो साइन आपको साइन ही देगा, कोस कोस ही देगा, टेंजेंट टेंजेंट ही देगा। इसलिए साइन पाई इज साइन एंड एंगल इज एज इट इज। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कुछ नहीं है, ये हमारा क्या हो गया? चेंज होके आ गया। तो हमने क्वाड्रेंट का रूल लगाया और आपको क्या मिल गया? साइन 2 पाई बाई 5। नाउ लुक एट द टर्म 2 पाई बाई 5। 2 pi divided by 5, it gives us 72. And you know 72 range lies between minus 90 to 90. So you can write it as 2 pi by 5 lies between minus pi by 2 to plus pi by 2. So answer is what? Answer is 2 pi by 5. तो जब भी आपको साइन की टर्म्स में मिलेगा तो आप एंगल को स्प्लिट करके लिखना, पाई माइनस करके या पाई माइनस करके। तो पाई माइनस करके क्या होगा? चेंज हो जाएगा और आपका क्वाड्रेंट उसी में ही रहेगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो उसके बाद जो एंगल मिलेगा वो एंगल कौन सा होगा? उसके रेंज के बिटवीन का एंगल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यदि नहीं भी आया हो तो प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेम। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। Now look at the part 4. In this cos inverse cos x, it gives us x when x lies between 0 to pi. 0 to pi means 0 to 180. Now look at the question. 13 pi by 6. It means 13 pi means 180 divided by 6. 6 into 3, 30. So 13 into 3, 390 degree. तो आपको पता है 390 डिग्री इज आउट ऑफ रेंज बिकॉज रेंज इज 0 to 180। सो ये आपको आंसर 13 पाई बाय 6 नहीं देगा। तो आपको क्या करना है? इसको रेंज में बनाना है। अब चेक करिए फंक्शन क्या है? कोस। एंड कोस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है तो 0 प्लस या 360 प्लस से बनेगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो कैसे बनेगा? 360 माइनस। 360 माइनस व्हाट? 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस। तो आपको इस एंगल को ब्रेक करना है, या तो 2 पाई माइनस करके बनाइए या 2 पाई प्लस करके बनाइए। क्यों? क्योंकि 2 पाई पे भी एंगल चेंज नहीं होता, कोस कोस ही रहेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज कोस इनवर्स कोस 2 पाई। दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई प्लस पाई बाय 6। How it is? अब चेक करिए, इट्स वेरी सिंपल। यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूं, व्हाट द एलसीएम इज 6। 6 into 2 12 पाई। 12 पाई प्लस पाई 13 पाई। सो 13 पाई बाय 6। सो 13 पाई बाय 6 इट मींस दिस फॉर्म इज करेक्ट बिकॉज हमने वैल्यू को चेंज नहीं करना, वैल्यू तो वही रखनी है। तो इसका मतलब ये चीज सेम है। Now what we have to do? Apply the quadrant formula. Now what's the quadrant rule? Cos 2 pi, no change. So cos comes as it is. Angle is pi by 6. And you know 2 pi plus is, it means quadrant is first. And first quadrant में cos क्या होता है? Positive. So answer is what? Positive. Now look at this. अब आपको angle क्या मिला? You get pi by 6. And we know पाई बाय 6 बिलोंग्स करता है 0 to पाई। सो पाई बाय 6 means 30 and 30 comes in the range 0 to 180. So answer is 30. So our answer is what? Answer is pi by 6. So इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इसको कट कर देते हैं और आंसर लिख देंगे 13 पाई बाय 6। तो गलती वही होगी, जब तक रेंज में एंगल नहीं आएगा तब तक आप इसको कट नहीं कर सकते। यही क्या कहती है इसकी? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। सो प्लीज रीड द एंड नोट इट वेरी वेरी केयरफुल। लुक एट द क्वेश्चन एंड नोट इट इन योर स्पेयर नोटबुक। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ पार्ट कोट इनवर्स कोट, आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, कोट इनवर्स कोट माइनस पाई बाई 4। इट्स वेरी सिंपल। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इट्स वेरी सिंपल। कोट इनवर्स कोट नेगेटिव माइनस पाई बाई 4। सो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोट नेगेटिव थीटा है एंड यू नो कोट नेगेटिव थीटा है मीन्स आपको प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता तो मैं दिख रहा हूँ, इसको अपनी फेयर नोटबुक में सेपरेट पेज पे नोट करते जाना। क्या रूल होता है, मैं रूल सारे का दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी है, ये आपके पास साइन नेगेटिव थीटा है तो इट इज नेगेटिव साइन थीटा, आप नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हो। इसी टाइप से साइन अपोजिट इज कोसेकेंट नेगेटिव थीटा, इट ऑल्सो नेगेटिव कम्स आउट, इट बिकम्स नेगेटिव कोसेकेंट थीटा। सेम टेंजेंट, ये आपको टेंजेंट में नेगेटिव थीटा मिलता है, ये भी क्या होगा माइनस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट रेसिप्रोकल इज कोट, कोट में नेगेटिव थीटा है वो भी क्या बन जाएगा माइनस कोट थीटा, बट रिमेनिंग टू एंगल्स। नेक्स्ट इज कोस नेगेटिव थीटा है तो नेगेटिव रिमूव हो जाता है, इट बिकम्स ओनली कोस थीटा। सिमिलरली सिकेंट, सिकेंट में भी नेगेटिव थीटा है तो वो भी क्या बन जाएगा सिकेंट थीटा। So these two properties are different. Only cos negative theta is cos theta and secant negative theta is secant theta. Otherwise, all the angles are becomes negative. So sin negative theta minus sin theta, tangent negative theta, negative tangent theta. So this property can be read और आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में, क्योंकि मैं वन बाय वन आइडेंटिटीज भी लिखवा दूंगा आपको और प्रॉपर्टीज भी लिखवा दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन करना काफी easy हो जाए. So please make a note first. Now please apply. Cot negative theta is negative cot theta. So I can write it as cot inverse negative cot pi by 4. And आपको पता है cot pi by 4 means cot 45. Cot 45 is 1. So this can be written as cot inverse negative 1. And we already know in our third lecture, यदि आपको नहीं देखा तो इन प्रॉपर्टीज को एक बार अगेन रिपीट कर लेना. ये प्रॉपर्टी रीड ऑलरेडी कर चुके हैं. कोट नेगेटिव एंगल कैन बी रिटन एज पाई माइनस कोट इनवर्स पॉजिटिव. यदि कोट इनवर्स में नेगेटिव आ जाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स जो भी आपकी वैल्यू है. किस किस में होता है, कोट में होता है, सेकेंड में और कोस में. उन सब में पाई माइनस करके लिखा जाता है. बाकी थ्री में कैसे लिखा जाता है, नेगेटिव बाहर आ जाता है. सो पाई माइनस कोट इनवर्स 1. दिस इज व्हाट पाई माइनस कोट इनवर्स 1 इज व्हाट पाई बाई 4. नाउ प्लीज सॉल्व दिस. इफ वी सॉल्व दिस वी गेट 3 पाई बाई 4. दिस इज आवर आंसर. तो इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी नहीं नोट करी है, ये मेरी पिछली वीडियो में है जो मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई है. आप वहां से जाके तो देखिए और इसको नोट कर लीजिए. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट पार्ट 6. टेंजेंट इनवर्स एक्स, देयर इज चेंज इन प्रॉपर्टी. सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी. आप नोट करिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ. वहां पे क्या था साइन इनवर्स साइन एक्स था, यहाँ पे क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स. सो इसका मतलब हमने जो रेंज था उसको आप क्या बना दिया डोमेन. तो आपको अब डोमेन पता लगाना है कि डोमेन क्या है. आपको ऑलरेडी पता है कि हम साइन की डोमेन की बात करते हैं, इनवर्स फंक्शन के डोमेन की क्या होता है ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन -1 to 1 बट नॉट एक्सीड. सो sin into sin inverse x, it gives us x whenever x lies between -1 to 1.
बिकॉज जो साइन की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 to 1. सेम हियर, cos inverse cos x function, the range is same. So in this, x lies between -1 to 1. Both -1 and 1 are included. Third one is what? Tangent inverse x. So it gives us x. Whenever x lies belong to real value, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है. Same cot inverse x belongs to real, same as now secant into secant inverse x, it gives us x. Whenever x belongs to real value except -1 to 1. Same here, cosecant inverse x, it gives us x. Whenever x belongs to real value except -1 to 1. Now अब check करिए, question is tangent into tangent inverse x, and what's the domain of tangent inverse x is what? X belongs to real value. So this is what? X is your real value. So answer is what? Our answer is x, and x must be belongs to रियल वैल्यू. क्यों आंसर आपका x ही रहेगा, लेकिन x कब होना चाहिए? x आपका बिलोंग्स टू रियल वैल्यू से बिलोंग करता होना चाहिए. यदि है तो आंसर इज x, अदरवाइज आंसर इज नॉट पॉसिबल. सो आप डायरेक्ट लिखोगे इसका आंसर क्या? x. So please make a note, and this property also note. So we covered property 1 and property 2. जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे मैं प्रॉपर्टी लिखवाता जाऊंगा, आइडेंटिटी लिखवाता जाऊंगा. तो आप अपने सेपरेट बुक पे आइडेंटिटीज को अलग से लिखना और प्रॉपर्टीज को अलग से लिखना. फिर ये एक्सरसाइज बिकम्स वेरी वेरी इजी. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 2. Find out the values sin bracket sin inverse x plus cos inverse x. This question is just only 1 second. 1 सेकेंड का क्वेश्चन है. How is it? इसके लिए प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको. प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी सिंपल. जैसे आपको बताता हूँ, here sin and cos. आपको पता है साइन और कोस में क्या होता है? π/2 90 पे एक साइन चेंज हो जाता है कोस में, कोस चेंज हो जाता है साइन में. तो आपको एक लॉजिक याद रहेगा कि भाई साइन 90 पे चेंज होता है कोस में, तो साइन और कोस ये 90 का फर्क है. इसका मतलब इन दोनों का सम भी किसके इक्वल है? 90 के ही इक्वल होता है. ये प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? प्लीज रीड द. साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, मतलब x should be same. So then sin inverse x plus cos inverse x is equal to what? π/2. But जो रेंज है x की, डोमेन इन द सेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन, सो वो किस में होना चाहिए? -1 to 1 होगा. तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट π/2. सो x should be same. ये चीज कंडीशन याद रखना. यहाँ पे sin इनवर्स x है, यहाँ पे cos इनवर्स y है, तो ये π/2 नहीं होगा. दोनों क्या होना चाहिए? should be same. सेम टेंजेंट किस में चेंज होता है? कोट में. तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? अगेन π/2. अब आपको पता है टेंजेंट या कोट इनवर्स का डोमेन क्या होता है फंक्शन का? ऑल रियल वैल्यू. सो x शुड बी बिलोंग्स टू रियल वैल्यू. थर्ड वन इज व्हाट? सेकेंड किस में चेंज होता है? कोसेकेंट में. सो सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? π/2. और x सेकेंड या कोसेकेंट की क्या होती है? वो भी रियल वैल्यूज ही होती है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? -1 और 1 के बिटवीन की वैल्यूज को छोड़ के सारी रियल वैल्यूज क्या होती है? उसका डोमेन होती है. तो आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी याद रखनी है. तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 3. अब क्वेश्चन को देखिए. इट्स वेरी वेरी सिंपल. यू नो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज सेम. सो दिस कैन बी रिटन एज π/2 according to what? This property. So sin π/2 मतलब 90, sin 90 is what? So answer is what? 1. It's very very simple. So please make a note this property also. Now look at the board. Question number 2 part 2. Cos secant inverse x plus cosecant inverse x same, क्योंकि सेकेंड किस में चेंज होता है? कोसेकेंट इनवर्स में. और x और x क्या है? सेम. सो इट शुड बी π/2. इट्स वेरी सिंपल. सो इट इज cos π/2 according to which property? According to this property. And you know cos 90 is what? 0. So answer is what? 0 is our answer. It's very simple.
Now look at the question number 2 part 3. In this cos इनवर्स, आपको याद रखना है जब आपका फंक्शन cos इनवर्स से स्टार्ट होता है तो जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स है उसको भी आपको cos में ही चेंज करना है ताकि cos इनवर्स cos कैंसिल आउट होके आपको आंसर दे दे। तो इसको सोल्व करना है और आपको क्या बनाना है, cos बनाना है। अब cos बनाने के लिए आपको माइंड में स्ट्राइक करना है कि इसको cos कैसे बनाया जाए। बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ये तो पता नहीं कितने क्वेश्चनों में यूज होती है, हजारों लाखों क्वेश्चनों में यूज होती है। किसकी आइडेंटिटी है ये, cos टू थीटा की। व्हाट इज द आइडेंटिटी, आप नोट कर लीजिएगा इसको अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में रिवाइज हो रही है यहाँ पे वन बाय वन। ऑल आइडेंटिटी में यहाँ रिवाइज कराऊंगा तो आप नोट कर लीजिए इसको। आइडेंटिटी व्हाट, cos टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि आप इस प्रॉपर्टी की फॉर्म को थोड़ा और चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज कर सकते हो। यदि मैं एंगल को हाफ कर देता हूं तो हाफ करना है तो दोनों साइड करना है, तो इसकी एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, टू थीटा का हाफ क्या बन गया, cos थीटा, और यहाँ पे थीटा का हाफ क्या होता है, थीटा बाई टू। सेम यहाँ भी थीटा का हाफ क्या रहेगा, थीटा बाई टू। इसका मतलब है कि cos टू थीटा है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इट्स क्वाइट सिंपल। सो प्लीज इसको नोट करिए इन योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। फिर मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। वैसे तो यहीं पे सोल्व कर सकता हूँ, प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। सो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज व्हाट, क्योंकि एंगल थीटा था यहाँ पे एंगल x है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज cos इनवर्स cos 2x एंड 2x belongs to what, what's the values, -1 to 1। यदि ये इस वैल्यू में बिलोंग करेगा तभी हमें क्या मिल जाएगा, आंसर इज 2x। दिस इज आवर आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट और आल्सो इस प्रॉपर्टी को भी आप अगेन नोट कर लीजिए। जस्ट वेट मिनट, आप वेट करिए। यहाँ cos 2x है क्योंकि इनवर्स फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज की। सो 2x यहाँ पे क्या होना चाहिए, x की रेंज क्या होती है 0 to पाई, क्योंकि ये इनवर्स होता तो उसको हम रेंज में रखते -1 to 1। यहाँ पे क्या है, इसका डोमेन है, डोमेन किस में होता है 0 to पाई में। सो आप इसको यहाँ से ये नोट करिए और मेक अ नोट प्लीज। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। cos इनवर्स अगेन माइंड पे स्ट्राइक किया कि क्या यहाँ पे cos इनवर्स है तो इसको भी पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या बनाना है, आपको cos ही बनाना है ताकि cos इनवर्स cos कैंसिल आउट होके आपको क्या दे दे, आंसर दे दे। तो व्हाट वी हैव टू डू, आप इसको cos बनाइए। ध्यान से देखिए इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, और हाउ मेनी 4 टर्म्स किस आइडेंटिटी में आती है, आया कुछ समझ या नहीं आया, यस 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 आया है। क्या आइडेंटिटी इज cos a plus b। व्हाट इज आइडेंटिटी, cos a into cos b, and if it there is positive so this is negative, sin a into sin b। सेम यदि cos a minus b आए तो आइडेंटिटी क्या यूज होगी, cos a into cos b plus sin a into sin b। इट्स वेरी सिंपल। और यदि यहाँ पे cos इनवर्स की जगह sin इनवर्स आ जाता तो क्या यूज करनी है, sin की आइडेंटिटी। व्हाट्स आइडेंटिटी sin, sin a plus b is equal to what, sin a into cos b, and if this is positive this also be positive, sin a into cos b, cos a into sin b। same, sin a minus b is what, sin a into cos b
माइनस कोसेक इंटू साइन बी। तो आपको चारों आइडेंटिटी याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप समझ जाओगे कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे अप्लाई करनी है। तो प्लीज मेक अ नोट। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है क्वेश्चन में 1 2 3 4 4 टर्म है। यहाँ क्या है कोस, और आपको पता है कोस की आइडेंटिटी में क्या होता है, कोस को साथ साथ आता है और साइन साइन साथ साथ आता है। इसका मतलब यहाँ पे कोस है, तो इसको भी यदि मैं कोस बना देता हूँ तो शायद ये मैच कर जाए। इसलिए मैं लेट करके देख रहा हूँ कि क्या ये कोस इसको मैं मानता हूँ, तो यदि ये कोस बनता है तो इसके साथ से ये क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, ताकि ये बनता है कोस कोस साइन साइन। क्या ऐसा है या नहीं, चेक इट। लेट करने जा रहा हूँ, कोस एक्स है, इसको मैं कुछ भी लेट कर लेता हूँ, कोस वाई लेट कर लेता हूँ। सो लेट 3/5 इज इक्वल टू कोस वाई। मैंने 3/5 को क्या लेट कर लिया, कोस वाई लेट कर लिया। अब कोस से क्या निकालूंगा, साइन, और ये आइडेंटिटी आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1। तो यदि इसको सोल्व करके आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यदि कोस थीटा की वैल्यू से फाइंड आउट करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको क्या यूज करना है। अब यहाँ पे हमें कोस पता है तो उससे क्या निकल जाएगा साइन। अप्लाई दिस, साइन y इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है y, सो इट बिकम्स 1 माइनस कोस स्क्वायर y। इट्स वेरी सिंपल, 1 माइनस कोस y इज व्हाट 3/5 एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करिए, क्या आएगा आपको 1 माइनस 9/25। एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम आएगा इसका 25। So 25 minus 9 it gives 16 upon में 25 which is equal to 4/5। Now check करिए 4/5 यहाँ पे भी क्या है 4/5 है। इसका मतलब ये कोस, ये क्या बन गया कोस y, ये क्या है कोस x, प्लस ये क्या बन गया 4/5 इज व्हाट साइन y, और ये क्या बन गया साइन x की फॉर्म बन गई। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, तो प्लीज मेक अ नोट। सबसे पहले देखिए कोस कोस साइन साइन, बीच में साइन क्या है प्लस का, तो प्लस वाले में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी प्लस प्लस ये आइडेंटिटी। तो इसको रख के मैं बाकी को रब कर रहा हूं। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्या बन गया कोस कोस साइन साइन, तो बीच में साइन क्या है प्लस, इसका मतलब बीच में क्या आएगा नेगेटिव। तो ये सॉल्व करके क्या बन गया कोस, सॉरी यहाँ पे क्या था कोस इनवर्स, दिस इज व्हाट कोस a माइनस बी। अब इसमें आप x को भी मान सकते हो, x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस बी, x भी, दोनों आंसर इज करेक्ट। तो मैं जैसे लेट कर रहा हूं x माइनस वाई, अप्लाई हो गई, a की जगह x है और b की जगह क्या है y। सो दिस इज व्हाट, अब कोस इनवर्स कोस कैंसिल आउट, इट गिव्स अस व्हाट आंसर इज x माइनस y। सो दिस इज आवर आंसर। बट क्वेश्चन किसकी टर्म्स में था x की टर्म में, तो हमें आंसर भी किसकी टर्म्स में निकालना है x के टर्म में। तो y देखो, y क्या माना था आपने, ये क्या, ये 3/5 इज इक्वल टू कोस y है, तो आपको आंसर x की टर्म में लेके आना है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, जब कोस को दूसरी साइड लेके जाते हो किस में कन्वर्ट होगा इनवर्स में। सो दिस बिकम्स कोस इनवर्स एंड 3/5 एज इट इज। सो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ y इज कोस इनवर्स 3/5। प्लीज राइट दिस, x माइनस कोस इनवर्स 3/5, दिस इज द आंसर। सो दूसरा आंसर भी हो सकता है इसका, कौन सा हो सकता है जिसको हम x माइनस वाई ना लेट करके क्या कर सकते थे y माइनस एक्स पे लेट कर सकते थे। तो आपका ये आंसर ये लिख दोगे 3/5 माइनस x, तो ये आंसर भी करेक्ट है। तो दोनों आंसर है
करेक्ट, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो बोथ आंसर आर करेक्ट. सो प्लीज मेक अ नोट. सो वी डिड कंप्लीट आवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. तो इसी टाइप से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर्टीज को भी लिखूंगा और आइडेंटिटीज को भी लिखूंगा. तो यदि आपने 11th में कुछ भी रीड नहीं करा है तो अभी डोंट वरी, आपको सारे रूल्स दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे और आइडेंटिटीज भी याद हो जाएगी. सो दिस लेक्चर बिकम्स वेरी वेरी इजी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. तो मैं इसी टाइप से न्यू वीडियो बनाऊंगा, आप कंटिन्यूसली रहते रहे. और यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है तो यू कैन कमेंट मी ऑन माई यूट्यूब चैनल. So we will meet very soon. Thank you once again for watching my video from start to the end.